बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर ग्राफिक्स में अभी जो हमारा टॉपिक है वो है कलर डिस्प्ले टेक्निक्स इन द CRT कैथोड रे ट्यूब। Color display techniques in CRT, the two basic techniques for producing color displays with the CRT are the beam penetration method and the shadow mask method. Beam penetration and shadow mask, two methods, so one by one we will discuss these both. First we will discuss the beam penetration method. Beam penetration method for displaying color pictures has been used with random scan monitors. Two layers of phosphor, usually red and green, are coated onto the side of the CRT screen. So and the displayed color depend on how far the electron beam penetrates into the phosphor layer. A beam of slow electricity excites only the outer red layer. A beam is very fast electron penetration through the red layer and simulate the inner green layer at intermediate beam speed. Combination of red and green light are emitted to show the two additional colors. Red and green colors जब combine तो multiple two additional color which are the orange and yellow. When green और red जब combine होते हैं तो आपको या orange या yellow इस तरह का जो है color shade जो है बन के आता है. The speed of the electron and hence the screen color at any point is controlled by the beam acceleration voltage. The beam penetration has been an inexpensive way to produce a color in the random scan monitors, but only 4 colors are possible and the quality of the picture is not good as in the other methods. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन गन से जनरेटिंग द थ्री डिफरेंट कलर्स रेड ग्रीन एंड ब्लू कंबाइनली. जब ये दोनों कंबाइन होकर कोई आपको कलर जनरेट करेगा, इट इज़ पास थ्रू द शेडो मास्क. सो यहाँ पे जो है रेड और ग्रीन एंड ब्लू जब मिलके एक दो शेड्स ऑरेंज या ग्रीन जो है ग्रीन कलर का जो शेड आपको ऑरेंज या येलो कलर का जो शेड आपके सामने है. मैग्नीफाइड फॉस्फर डॉट ट्राइंगल. अब ये 3 डॉट से कंबाइंडली अगर इसको मैग्नीफाइड फॉर्म में देखें तो ये 3 डॉट्स हैं. ठीक है, 3 ये कंबाइनली आपको एक मल्टीपल शेड में या तो येलो या ऑरेंज शेड में आपको नज़र मगर स्क्रीन पे जिस तरह वो नज़र आ रहा होता है ना. ठीक है, सो दीज 3 कलर्स आर जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रॉन गन and which have the values of the RGB as I have discussed earlier. The red, green and blue 3 और हर एक कलर के जो corresponding 8-bit डेटा होता है. So यहाँ पे जो बता रहे हैं the speed of the electron enhances screen color at any point is controlled by the beam acceleration voltage. Beam penetration has been an inexpensive way to produce a random scan monitor, but only 4 colors are possible in the quality and the quality of picture is not good as with other methods. And इस तरह इसमें जो है मल्टीपल जो है अगर 4 कलर्स की पॉसिबिलिटी होती है, बट इज़ मोर एक्सपेंसिव एंड देन द अदर methods of displaying images on the CRT. फिर ये है shadow mask method. Shadow mask method are commonly used in raster scan systems including the color TV because they produce a much wider range of colors than the beam penetration method. A shadow mask CRT has 3 phosphor color dots at each pixel position. One phosphor dot emits a red light, another emits a green light, and another third emits a blue light. That this type of CRT 3 electron guns and one for each color dot and shadow mask just behind the phosphor coated screen. जिस तरह आपको यहाँ पे नज़र आए phosphor coated screen, यहाँ पे shadow mask, और ये आपको जो 3 कलर्स इस तरह ये जो है जनरेट हो रहे हैं इस वजह से. तो ये अब देख रहे हैं कि इसी जो है यहाँ से वो पूरी बीम पेनेट्रेट होके इसी शेडो मास्क के थ्रू सिलेक्शन ऑफ शेडो मास्क ऑन द स्क्रीन के कहाँ पे ये शेडो इसका बनेगा, कहाँ पे इसकी जो है कौन सी जगह वो सेलेक्ट होगी, कहाँ पे वो स्ट्राइक करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो है 3 इलेक्ट्रॉन गन्स, one for each color dot and a shadow mask grid just behind a phosphor coated screen. The 3 electron gun beams are reflected and focused on this group onto the shadow mask.
which contain a series of holes aligned with the phosphor dot pattern. When the three beams pass through a hole in a shadow mask, they activate a dot triangle when it appears as a small color spot on the screen. इस तरह आपको नज़र आ रहा है स्मॉल इस तरह। तो ये मल्टीपल वैसे जो है वो स्पॉट यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक कर रही है जो आपको नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो उस पर वो उसी के लिहाज से तीन कलर्स कंबाइन होंगे तो आपको उसी लिहाज से जो है मल्टीपल शेड्स के उसमें नज़र आ रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन बीम आर डिफ्लेक्टेड एंड फोकस्ड ऑन द ग्रुप ऑन टू द शेडो मास्क विच कंटेन द सीरीज ऑफ होल्स aligned with the phosphor dot pattern. When the 3 beams pass through the hole in the shadow mask, they activate a dot triangle which appears as a small color spot on the screen. The phosphor dot in the triangle are arranged so that each electron beam can activate only its corresponding color dot when it passes through the shadow mask. So यहाँ पे इसको मैंने डिस्कस किया कि शेडो मास्क से पास होके जो करस्पॉन्डिंग कलर एरिया को सिलेक्ट करेगा स्क्रीन पे मैग्नीफाइड फॉर्म में कि क्या कि उसको समझ सके ना, ग्रीन है, रेड है, ग्रीन एंड ब्लू है ना, मैग्नीफाइड फॉस्फर डॉट अंडर फॉस्फर डॉट ट्राइंगल। फिर नेक्स्ट इज कलर CRT इन द ग्राफिक सिस्टम आर डिज़ाइन एज RGB monitors. They use shadow mask method and takes an intensity level for each electron gun, red, green and blue, directly from the computer system. High quality raster graphic system have 24-bit pixels as I have discussed earlier. 24-bit pixels आपको बिट पिक्सल आपको जनरेट कर रहा होता है, मगर हाई क्वालिटी जब रास्टर इमेजेस हो, क्योंकि 24-bit पिक्सल है जो बहुत बड़ी वैल्यू मीन 2⁻24 पॉसिबल शेड्स, इसमें पॉसिबल शेड्स होंगे। पिक्सल्स इन द फ्रेम बफर अलाउिंग 256 वोल्टेज सेटिंग फॉर ईच इलेक्ट्रॉन गन एंड नियरली 17 मिलियन कलर चॉइसेस। जिस तरह ये है, ये इज़ फॉर रेड, इज़ फॉर ग्रीन, इज़ फॉर ब्लू। दिस इज़ 2⁸8, 2⁸8 एंड इज़ 2⁸8। सो कम्बाइंडली अगर इसको हम देखें तो ये 17 मिलियन पॉसिबल कलर्स है फॉर ईच पिक्सल, each pixel value. So 2⁸8, 2⁸8, 2⁸8, 256, 2⁸8 से तो फिर ये आपस में जो है इस फॉर R, G and B for each pixel. And RGB color system with the 24 bits of storage per pixel generally referred to as full color system or true color system. ट्रू कलर सिस्टम बिकॉज यहाँ पे जो जितने भी शेड्स हैं 2⁻24 पॉसिबल शेड्स जो है आपको जो है बहुत ज़्यादा कलर शेड्स को प्रोवाइड कर रहा होता है। Now CRT displays advantages and disadvantages. Fast response, high resolution possible. Fast response के जो इमेज है या जो पिक्चर जो बन रहा होता है स्क्रीन पे वो फ़ौरन मतलब वो विद इन शॉर्ट टाइम वो डिस्प्ले होना। फुल कलर लार्ज मॉड्यूलेशन डेप्थ ऑफ द ई बीम इलेक्ट्रॉनिक बीम। कलर डेप्थ इज़ द एक्चुअली द बिट साइज विच इज़ द 24 बिट साइज। सो 2⁻4 24 पॉसिबल शेड्स जो कि अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। सो कलर डेप्थ is the number of bits involved in the each pixel. अब हर पिक्सल में नंबर जो पिक्सल की जो बिट वैल्यू है, सपोज एक पिक्सल की जो बिट वैल्यू है 2⁻24 तो पॉसिबल शेड्स है, बट दिस रिप्रेजेंटिंग द सिंगल पिक्सल बिट वैल्यू जो कि 24 बिट है। सो दिस 24 बिट जितने भी है 24 बिट्स रिप्रेजेंटिंग द कलर डेप्थ ऑफ द ईच पिक्सल। सो सेचुरेटेड एंड नेचुरल कलर, सेचुरेटेड बहुत ज़्यादा इस मकदार में है और नेचुरल कलर्स इसलिए कि कलर शेड्स बहुत ज़्यादा हैं। 2⁻24 कलर शेड्स और नेचुरल कलर्स जनरेट करेंगे। इनएक्सपेंसिव मैच्योर टेक्नोलॉजी, वाइड एंगल, हाई कंट्रास्ट एंड ब्राइटनेस। These are the advantages and now the disadvantage. लार्ज एंड हैवी, बहुत लार्ज और हैवी जो है इसकी जो इमेजेस उसकी जो है वो है टाइप की 20-70 × 70 सेंटीमीटर 15K, ठीक है। इसकी जो लार्ज एंड हैवी 7 to 70 सेंटीमीटर मतलब इसकी जो है साइज़ ज़्यादा हैवी और 15 kg अप टू 8। हाई पावर कंजम्पशन अबाउट 140 वाट
W for watt. Harmful DC and AC electric and magnetic fields generated by the CRT. Electric and magnetic field generate होती है इससे ज़्यादा. Flickering, shining at the 50 to 80 Hz, no memory effect. फ्लिकरिंग जिस तरह वो जो है उसमें जो पिक्चर की जो वो मूवमेंट्स ही होती है, फ्लिकरिंग शाइनिंग सा, ठीक है, तो इस तरह तो ये भी आइज़ पे जो है इफ़ेक्ट पड़ता है इस तरह का. तो ये इसकी सारे डिसएडवांटेजेस कि हाई पावर कंजम्पशन एंड हाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड इसका साइज़ भी है ज़्यादा होता है, और इसका जो है लेंथ जो है मतलब जो इसकी वेड्थ है रोज़ जो 70 to 70 सेंटीमीटर अप टू जिसकी जो स्क्रीन वेड्थ होती है. सो ये है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को CRT डिस्प्लेस की समझ आ गई होगी.